ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਪਾ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਐਂਡ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਆਲਟਰਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟਸੈਲਫ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਐਨੀ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜੋ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 3 to 4 ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਉਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ डाइऑक्साइड, ठीक है। मैगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ऐड करांगे, ठीक है। और रिएक्शन एज इट इज हो रही है, बस वो की पाया, कैटलिस्ट पाया, ठीक है। कैटलिस्ट का नाम है मैगनीज डाइऑक्साइड। अपन बस 15 मिनट्स ऑक्सीजन तैयार हो जाएगी, सिर्फ 15 मिनट्स। कितने रिएक्शन जी 3 ਤੋਂ 4 घंटे लग रही सी, ठीक है। 3 ਤੋਂ 4 घंटे लै रही सी रिएक्शन होने ते, लेकिन अपनी रिएक्शन कितने हो रही है, 15 मिनट्स हो रही है, जस्ट 15 मिनट्स, ओके। तो किहदा कमाल है, एक कैटलिस्ट का कमाल है, ठीक है। ਹੁਣ बेटा कैटलिस्ट दो तरह काम कर सकता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नैगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट की करेगा, रेट ਨੂੰ की करेगा, इंक्रीज़ करेगा। स्पीड की है, इंक्रीज़ होएगी, स्पीड इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट ਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ रिएक्शन ਦੀ स्पीड इंक्रीज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल है बेटा अपने को कॉन्टैक्ट प्रोसैस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ सल्फ्यूरिक एसिड बनाना ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ कॉन्टैक्ट प्रोसैस यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ कैटलिस्ट ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, दैट इज़ V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ बेटा रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, ओके। तो यही की हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। उधर नैगेटिव कैटलिस्ट की काम करता है, नैगेटिव कैटलिस्ट काम करता है डिक्रीज़ करता है रेट में, स्पीड की कर दे। हूँ कैटलिस्ट स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकता है, स्पीड डिक्रीज़ भी तो कर सकता है। तो इफैक्ट पाने रिएक्शन की स्पीड से, ठीक है। वो स्पीड की कर सकता बेटा, डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो डिक्रीज़ करने वाले कैटलिस्ट को कहांगे अपन नैगेटिव कैटलिस्ट, ओके। एग्जाम्पल है अपने को जो आप डीकंपोज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है। अगर वो आप सल्फ्यूरिक एसिड पा दिए, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड पा दिए, जो रिएक्शन हो रही सी वो भी स्पीड की हो जाती है, घट जाती है। रिएक्शन होने की स्पीड की हो जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है, ठीक है। एक ही हो गया फिर अपना नैगेटिव कैटलिस्ट हो गया, ओके। अगे बेटा आप देखते हैं फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। जो बेटा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट की भी कुछ एनर्जी होंगी जिन्होंने आप ER कहता, प्रोडक्ट की भी कुछ एनर्जी होंगी जिन्होंने आप कहता EP, ओके। तो जो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उदों उन्होंने कुछ एनर्जी बैरीयर क्रॉस करना पैंदा है, ओके। पहले की है आह एनर्जी का बैरीयर है, अगर ये बैरीयर क्रॉस कर लेगा दैन उस तो बाद आह जो इतने पहुँच जाएगा, क्रॉस हो गया, उस तो बाद की होएगा, उस तो बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम की है, कैटलिस्ट का काम है कि यही एनर्जी बैरीयर में की करे, घटा दे, ठीक है। हुण ये कैटलिस्ट के नाल आप उपर सी लगाता, यह एनर्जी बैरीयर में की करे, घटा दे, ठीक है। तो अपना पाथ जोड़ा है दूसरा हो जाए, ओके, ठीक है जी। हुण एनर्जी बैरीयर घट गया, इन्ना डिफरेंस पै गया, रिएक्शन की होएगी, फास्ट होएगी, ओके। रिएक्शन नूं होण वास्ते कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होंदी है, जिस नाल की हुंदा बेटा एनर्जी बैरीयर क्रॉस होंदे आ। एनर्जी बैरीयर जो क्रॉस हो जाते दैन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो यही एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करता है अपना कैटलिस्ट, ओके। कैटलिस्ट का काम की है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी की करना है, एक्टिवेशन एनर्जी लो करना है, ठीक है।
कैटलिस्ट अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेस एंड टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड विद रिएक्टेंट बट रिकवर्ड अनचेंज इन ओरिजिनल फॉर्म इन एंड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट की है बेटा एक इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, मतलब वो थोड़े फिजिकल चेंजेस होंगे ने कैटलिस्ट के थोड़े जे की होंगे ने फिजिकल चेंजेस होंगे ने तो टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड बनते हैं। टेम्परेरी का की मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ठीक है, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ब्रेक हो जाएंगे, ਉਹ ਵਾਲੇ बॉन्ड्स बनते हैं किहदे नाल रिएक्टेंट दे नाल, ठीक है, रिएक्टेंट नाल बन जाते हैं। दैन बेटा उस तो बाद रिएक्शन हो जाती है तो अपना जिहड़ा कैटलिस्ट है वो रिकवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है मतलब कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म दे विच आ जाता है रिएक्शन के एंड ते। ओके, पता लग गया। कैटलिस्ट की है बेटा इंटरमीडिएट बनाएगा, कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे उहदे विच, कुछ टैंपरेरी कैमिकल बॉन्ड बनणगे, लेकिन एंड ते आपां नूं कैटलिस्ट एज इट इज़ मिल जाएगा वापस। ओके, उस तो बाद काम की है बेटा कैटलिस्ट आप कादे लिए यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट जनरली बेटा आप कादे लिए यूज़ करते हैं स्पीड अप रिएक्शन, रिएक्शन को इनक्रीज करने लिए, ठीक है, रिएक्शन तो इनक्रीज करता है लेकिन बेटा अगर आप रिवर्सीबल प्रोसैस रिवर्सीबल देखिए ने अपने रिवर्सीबल जी बैक आदि ने जिन्हों इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, जिथे इक्विलिब्रियम आ चुका है, जिस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, कैटलिस्ट पाना तो कोई भी फर्क नहीं पेगा, इक्विलिब्रियम इधर उधर शिफ्ट नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन एफ आर फॉरवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इनक्रीज करेगा, वो भी इक्वली, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी इनक्रीज करेगा, बैकवर्ड का भी इनक्रीज करेगा, इक्वली मतलब इक्विलिब्रियम का कितने भी शिफ्ट नहीं होएगा, ठीक है। उस तो बाद बेटा अपने कैटलिस्ट की होंगे हाईली स्पैसिफिक इन नेचर होंगे। हाईली स्पैसिफिक मतलब कि बेटा हाईली स्पैसिफिक मतलब कि अगर जिस रिएक्शन की आप कैटलिस्ट ऐड किया ना, जिस रिएक्शन की, ठीक है, जिस रिएक्शन की ऐड किया ओदी ही इनक्रीज होएगी स्पीड, ठीक है। अगर वो नाल दी सिमिलर रिएक्शन भी है ना वो भी फर्क नहीं पेगा, सिर्फ कैटलिस्ट किहदे लई काम करेगा जिस रिएक्शन की बनया होया, ठीक है, एक रिएक्शन को इनक्रीज करेगा, ठीक है, एक रिएक्शन की स्पीड को इनक्रीज करेगा, और नाल दी दूजी रिएक्शन की स्पीड को इनक्रीज नहीं करेगा। ओके, हाईली स्पैसिफिक का मतलब की है बेटा कि दूसरी कोई रिएक्शन हो रही होगी, अगर वो एक रिएक्शन आप ए तो बी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो कैटलिस्ट पाया, ठीक है, स्पीड इनक्रीज हो रही है, बी जल्दी बन रहा है। अगर कोई ये नाल दी ही कोई सिमिलर टाइप की हो जाए या डिफरेंट टाइप की हो जाए, सी टू डी बन रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन है, यही कैटलिस्ट सेम इत्थे पावांगे, ठीक है, सेम पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन लिए इनक्रीज हो रहा सी तो ये भी स्पीड इनक्रीज होएगी, ये कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा, नो इफेक्ट। ओके, इस करके आप कहेंगे कि अपने कैटलिस्ट की होंगे ने स्पैसिफिक इन नेचर होंगे ने। ओके, उस बाद डू नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो ना ही प्रोडक्ट की एनर्जी से कोई इफेक्ट पाता है, वो उन्नी ही है, रिएक्टेंट की एनर्जी इन्नी सी उन्नी ही है, प्रोडक्ट की एनर्जी इन्नी सी वो उन्नी ही है, सिर्फ वो की करता है, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो ना ही बेटा वो कोई इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, ना ही कोई इंथैल्पी, ना ही एंट्रोपी, तो ना ही गिब्स फ्री एनर्जी कोई चेंज आएगा, ठीक है। ओके, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। ये अपना हो गया फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। उस तो बाद बेटा दो टर्म्स होर आंदियां ने, एक होंगे ने प्रमोटर्स, एक पॉइजन, जिहड़े कैटलिस्ट दे नाल होंगे ने प्रमोटर्स ते पॉइजन। प्रमोटर्स की होणगे बेटा, प्रमोटर अपन पता है इनक्रीज करने वाला, स्पीड इनक्रीज करने वाला होएगा, ठीक है, प्रमोट करने वाला होएगा, अगे बढ़ाने वाला होएगा। ओके, प्रमोटर का मतलब ये होएगा, प्रमोटर की होंगे एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी नूं वधाउणगे, इनक्रीज करेंगे, इनहांस मतलब होंदा इनक्रीज करना, उन्होंने आप की कहांगे प्रमोटर्स। एग्जाम्पल है बेटा अपने को हैबर प्रोसैस, हैबर प्रोसैस आप अमोनीया बनाने, ठीक है, हैबर प्रोसैस आप नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन Fe एज अ कैटलिस्ट पाने, Fe आयरन कैटलिस्ट होंगे, तो मोबिलिडियम होंगे MO, ठीक है, वो की होंगे प्रमोटर होंगे। प्रमोटर मतलब कि यदि एक्टिविटी की करेगा, इनक्रीज करेगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ बेटा पॉइजनस होंगे ने, पॉइजन अपन पता जहर का काम करेंगे, मतलब कि एक्टिविटी की करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल CO कार्बन मोनोक्साइड की है बेटा, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, तो आर्सैनिक, ये जनरली की होंगे बेटा, ये पॉइजनस होंगे ने, तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी की करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इन्होंने आप की कहेंगे पॉइजनस, ठीक है। एग्जाम्पल अपने को कार्बन मोनोक्साइड, आर्सैनिक, जनरली जिथे प्रेजेंट होंगे उत्थे पॉइजन का ही काम करेंगे। ओके, उस तो बाद बेटा कैटलिसिस अपने को दो तरीके का होंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट ते हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। होमोजीनियस की होंगे बेटा, होमोजीनियस पता है, होम मीनस टू से सेम, ठीक है, होम का अपन होमो पता है, होमो मतलब की हो गया सेम हो गया, इसका मतलब की है रिएक्टेंट ते कैटलिस्ट दोनों, रिएक्टेंट भी कैटलिस्ट भी की होंगे सेम फेस्ड होंगे। सेम फेस मतलब है कि अगर वो गैसीएस्ट है, रिएक्टेंट गैसीएस्ट ने, तो कैटलिस्ट भी की होएगा गैसीएस्ट होएगा, ठीक है, एक ही हो गया, होमोजीनियस हो गया। अगर अपने रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड होएगा,
ओके एक ही हो गया होमोजीनियस हो गया, मतलब उन्होंने फेस की होएगा सेम होएगा। अपने को एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है अपने को SO2, ठीक है, गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये कैटलिस्ट पाया NO, वो भी गैस है, तो अगर अपने प्रोडक्ट भी मिल रहा है वो भी गैस है, सारा की हो गया बेटा होमोजीनियस कैटालिसिस होगी, ठीक है, की होगी होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। हेट्रोजीनियस की होगी, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस से जस्ट ऑपोजिट, हेट्रोजीनियस की होएगा बेटा, हेट्रोस की होंगे डिफरेंट, ठीक है, की होएगा डिफरेंट फेस होएगा, डिफरेंट फेस, रिएक्टेंट ते कैटालिस्ट जेडे ने डिफरेंट फेस होंगे, ठीक है। अपने को एग्जाम्पल हैगी है हैबर प्रोसेस ही हाइड्रोजन ते नाइट्रोजन, ये दोनों गैसेस ने, अमोनीया भी गैस है, लेकिन बेटा जो कैटालिस्ट आप यूज़ कर दिया आयरन, वो की है वो सॉलिड है, ठीक है, वो की है सॉलिड है। अपने रिएक्टेंट ते कैटालिस्ट की हो गए डिफरेंट पेस्ट हो गए, मतलब की है ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है, केडी कैटालिसिस है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ओके अगे बेटा आप इन्होंने मैकेनिज्म देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हों मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। आप सब तो पहले होमोजीनियस था, सब तो पहले आप देखते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट था, ठीक है, कैटलिस्ट आप सब तो पहले यही एग्जाम्पल की है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ਨਾਲ रिएक्ट कराए सी दोनों गैसेस सी, ठीक है, NO एक किदी तरह यूज़ हो रहा सी, NO यूज़ हो रहा सी इत्थे गैस कैटलिस्ट की तरह, तो अपने को SO3 बन रहा सी, ठीक है। आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं, होएगा कि बेटा कि अपना जेड़ा कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रोवाइड करेगा अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ जी इत्थे आके रिएक्शन कर लो, ठीक है। वो की करेगा बेटा, कैटलिस्ट सब तो पहले की कर रहा है ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कर रहा है, तो एक बना रहे हैं इंटरमीडिएट, की बना रहे हैं इंटरमीडिएट बना रहे हैं, ठीक है, तो अगे ये इंटरमीडिएट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट नाल, ये भी की है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट B ले लिया, इनू रिएक्टेंट A ले लिया, ठीक है, रिएक्टेंट A ले लिया, रिएक्टेंट B नाल रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ SO2 नाल रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगे अपने को फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अपना वापस तो जो आप यूज़ किया सीगा कैटलिस्ट वो की हो रहा है रीजनरेट हो रहा है। पहले की हो रहा सीगा कैटलिस्ट की हो रहा है, सब तो पहले एक रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बना रहा है, वो इंटरमीडिएट फर्दर दूसरे रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो अपना एंड ते जो कैटलिस्ट है वो की हो रहा है रीजनरेट हो रहा है, यही मैकेनिज्म फॉलो होता है। एक होर एग्जाम्पल करते हैं जी, और बेटा ये भी की है होमोजीनियस कैटलिसिस की एग्जाम्पल है, ठीक है, H2O2, ठीक है, I नेगेटिव, ठीक है, 2H2O प्लस O2, ओके पहले की हो रहा है बेटा H2O2 जो कि अपना की है एक दो ने ना बेटा इतने, ठीक है, दो ने एक A ले लेना, एक ए दो ने, सब तो पहले एक बार एक H2O2 आया, ठीक है, उहदे नाल I नेगेटिव अपने कैटलिस्ट ने रिएक्ट किया, ठीक है, रिएक्ट करके H2O बनया, तो नाल की बनया इंटरमीडिएट बनया, नाल की बन गया अपना इंटरमीडिएट बन गया। फर्दर ये इंटरमीडिएट दूजे मॉलीक्यूल दूजे हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलीक्यूल ने रिएक्ट करेगा, ठीक है, उन्हें रिएक्ट किया, ठीक है, वाटर बनाया, ऑक्सीजन बनाई जो अपन चाहिए सी, तो अपना आ की है कैटलिस्ट की हो गया रीजनरेट हो गया, कैटलिस्ट की हो गया रीजनरेट हो गया, मतलब कैटलिस्ट अपने की हो जाएंगे एंड ते रीजनरेट हो जाएंगे। ओके फर्दर अपने को होर एग्जाम्पल्स ने हैगी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, NO कैटलिस्ट की तरह यूज़ होएगा, ओके, तो अपना की बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CO2 बन जाएगा। ओके ये भी की है होमोजीनियस की एग्जाम्पल है, होमोजीनियस की है एग्जाम्पल है। एक अपने को आ बेटा एक ही है कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी एस्टर है, ठीक है, एस्टर की है बेटा लिक्विड है, वाटर च पाया, ओके वो भी लिक्विड। H पॉजिटिव अपने को की है, H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन जिन्होंने कहने हैं, वो की है बेटा एक्वस है, वो भी लिक्विड ही होया एक्वस भी। ओके तो अपने को बनया कि बेटा अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन गया। ओके ये भी कादी एग्जाम्पल है होमोजीनियस नहीं क्यों, क्योंकि सारे के सारे की ने लिक्विड फेस ने, सारे के सारे का सेम की है फेस की है सेम है, केड़ा है लिक्विड है, इसका मतलब ये की होया होमोजीनियस कैटलिसिस होया। अगे बेटा आप फर्दर करते हैं हेट्रोजीनियस, अगे है बेटा अपने को हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की होएगा बेटा की है डिफरेंट फेस होएगा, फेस की हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि अगर कुछ एक गैस है तो दूजा की होएगा, अगर रिएक्टेंट गैस है तो अपना कैटलिस्ट की हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, की हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, तो यह की हो जाएगा हेट्रोजीनियस। ओके तो हेट्रोजीनियस बच्चे की है अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड है, एग्जाम्पल अपने को देखो सब तो पहले बेटा हाँ यही सेम एक ही है हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस आप 2-3 बार देख चुके हैं हूँ तो हूँ ही, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल के अपने को कैटलिस्ट की है Fe दैट इज़ आयरन, एक ही है अपने को कैटलिस्ट। ओके तो 2 अमोनीया बन रहे हैं, ओके आ सारी की ने गैसेस ने, लेकिन अपना की है कैटलिस्ट सॉलिड है, एक ही हो गया हेट्रोजीनियस हो गया। ओके होर एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और की है बेटा SO2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, ठीक है, V2O5 एक ही है बेटा, ये अपनी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस,
ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसैस है। फर्दर SO3 जाके की कन्वर्ट होएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होएगा। ओके, तो बेटा आ की सी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे सी, बाकी आ सारा की है अपने को कैटलिस्ट है। ठीक है, कॉपर है, जिंक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, एक ही है बेटा अपने को कैटलिस्ट, तो अपने को बन की रहा अपने को मीथेनॉल बन रहा है। की बन रहा है? मीथेनॉल बन रहा है। ये सारा की है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की हुई गैस हुई, हाइड्रोजन की है गैस है, अपना जो यूज़ हो रहा है कैटलिस्ट हो की सॉलिड है, तो अपने को जो प्रोडक्ट बन रहा है की है लिक्विड है। एक ही हो गया बेटा हेट्रोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। ओके, ये अपने को है बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसैस है, तो बाद की बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ओके, ये आप देखांगे 16th ग्रुप जो आप करांगे। फर्दर बेटा आप मैकेनिज्म देखना है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का, ये हो गया बेटा एग्जाम्पल अपने को। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀ ਬੇਟਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜੋ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ तो कुछ बॉन्ड बनाएगा, सरफेस है तो ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनाना ਇਹਦਾ खुद का आ वाला बॉन्ड की हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब बॉन्ड की हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर वीक हो गया तो उन्होंने तोड़ना ईजी हो जाएगा, तोड़ना ईजी है, बॉन्ड ब्रेक ईजी हो जाएगा, तो अपनी रिएक्शन अपने आप की हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये अपनी की आई एडजॉर्प्शन थ्योरी आई। क्या कि भी कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैमिकल फोर्सिस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, आके अट्रैक्ट होया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ बने बॉन्ड बने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड बनन लग गए तो ये वाला बॉन्ड की हो गया, वीक हो गया। आ वाला बॉन्ड वीक हो गया तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो अपनी रिएक्शन की हो जाएगी, अपने आप फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल बेटा आप हेबरोप्रोसाइड देखते हैं। ठीक है, ये दोनों ने आयरन के उत्ते आए। ठीक है, हाइड्रोजन भी आया, नाइट्रोजन भी आया। ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड की है बेटा ये जो बॉन्ड बनाने लग गया, जो ये बॉन्ड बनन लग गए उदों की हो जाएगा, आ वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसका मतलब ईजिली टूट जाएगा। अगर ये टूट जाएगा तो रिएक्शन की हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी फास्ट। ये आई बेटा ये की सी एडजॉर्प्शन थ्योरी सी। ठीक है, इस तो फर्दर बेटा एक होर थ्योरी आई, वो है अपनी मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। आप देखते हैं भी वो की है हैट्रोजीनियस बेटा एक थ्योरी की, वो थ्योरी केड़ी सी, एडजॉर्प्शन थ्योरी सी। अपनी नैक्सट हैट्रोजीनियस के मैकेनिज्म की थ्योरी है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी बेटा एक्चुअली दो थ्योरीज का कंबीनेशन है कि एक आप होमोजीनियसली जी कर रहे थे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो एक एडजॉर्प्शन थ्योरी, इन्होंने दोनों को मिक्स करके थ्योरी बनाई गई मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। हुंदा की है बेटा सब तो पहले डिफ्यूजन होंगे रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के उत्ते। ठीक है, कैटलिस्ट है, ठीक है, तो अपने को रिएक्टेंट है, ये की होंगे सब तो पहले बेटा डिफ्यूज होंगे, कोल कोल आएंगे। ठीक है, दैन की होगा एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो की होने शुरू हो जाएंगे, ए तो बी अलग अलग ने बेटा, विच प्लस है, अलग अलग ने, ये आएंगे इत्थे, ये की हो जाएंगे डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होने तो बाद इत्थे एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्ब हो गए। ठीक है, एडजॉर्ब हो गए, हुण की होएगा कैमिकल रिएक्शन होएगी। ठीक है, सरफेस के उपर कैमिकल रिएक्शन होएगी तो की होणगे इंटरमीडिएट बनेगा, विच की बनेगा, विच इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, कैमिकल रिएक्शन हुई, कैमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनया, अब बॉन्ड बन गए इन्हां दे विच। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया। जो बेटा इंटरमीडिएट बन गया उस तो बाद की होएगा बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा तो डिजॉर्प्शन होएगी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की। अपन की चाहिए सीगा ए ते बी वाला बॉन्ड चाहिए सी, वो इन्हां च बन गया। जो रिएक्शन होने लग गई, जो ये रिएक्टेंट कोल कोल आ गए, जो ये एडजॉर्ब हो चुके हैं, मतलब हुण कोल कोल आ चुके हैं, कोल कोल आ गए, दैन इन्हां च कोलिजन ईजी हो सकती है, कोलिजन हो सकती है, इन्हां च की हो गया विच इन्हां दे बॉन्ड बन गया। ठीक है, हुण की होना बेटा, हुण इन्हें सरफेस ने अलग होना है क्योंकि अपन जो चाहिए सी वो बन चुके हैं। वो की होएगा बेटा डिजॉर्प्शन होएगा, डिजॉर्प्शन होएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो गया, अपना दोबारे जनरेट हो गया तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, डिजॉर्प्शन होगी। उस तो बाद जो प्रोडक्ट ने वो डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि इत्थों दूर चले जाएंगे। हो गया जी। उस तो बाद की है बेटा अपने एडजॉर्प्शन नाल की हुंदा है। सब तो पहले एडजॉर्प्शन नाल की हुंदा बेटा इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हुण सरफेस है, ठीक है, इत्थे रिएक्टेंट घूम रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, जो ये अट्रैक्ट होणगे तो ऑफकोर्स ये की होणगे नेड़े नेड़े आ जाएंगे, इन्हां दी की होएगी कंसनट्रेशन इंक्रीज होएगी। इंक्रीज होंदी एडजॉर्प्शन कंसनट्रेशन सब तो पहली गल। उस तो बाद एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल डिसोसीएट टू फॉर्म एक्टिव स्पीसीज। ਜਿਹੜੇ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स ने वो डिसोसीएट होणगे तो एक्टिव स्पीसीज बनाएंगे। एक्टिव स्पीसीज मतलब कि रेडिकल्स बना देंगे या आयन्स बना देंगे, एक्टिव स्पीसीज बनाएंगे जिहदे नाल वो रिएक्ट ईजिली कर लैण। ठीक है, इस तो बाद कोलाइड ईजिली कर लैणगे। क्यों कोलाइड ईजिली हो जाएंगे, कोलाइड ईजिली हो जाएंगे, क्यों कोलाइड हो जाएंगे बेटा ईजिली, क्योंकि यह की ने कोल कोल हो गए, सरफेस के उत्ते कोल कोल आ गए, दैन ये कोलिजन ईजिली हो सकता है। ठीक है, उस तो बाद हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इवोल्ड।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी होंगी है, स्टेबिलिटी होगी ऑफकोर्स हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी तो ये वाली एडजॉर्प्शन की जी हीट है वो यूज़ हो चुकी है, कादे यूज़ हो सकती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट बनाने ली। ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाने ली। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ली की हो सकती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यूज़ हो सकती है। ठीक है जी, एक ही हो बेटा एडजॉर्प्शन हैल्प करती है। उस तो बाद बेटा अपना कैटालिसिस के कुछ फीचर ने। ठीक है, आप एक सिलेक्टिविटी की गल की सीगी, एक आप एक्टिविटी की गल करते हैं। हुण एक्टिविटी तो सिलेक्टिविटी की होंगी वो देखते हैं आप। एक्टिविटी की होंगी है बेटा, एक्टिविटी होंगी है एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रिएक्शन, इंक्रीज करनी है रिएक्शन। तो रिएक्शन कितनी इंक्रीज कर सकता है, वो की है एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। एबिलिटी कैटलिस्ट की कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितनी इंक्रीज कर सकता है, वो की है एक्टिविटी है। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब की है बेटा एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा अपना हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तुम सालों बदी ना कमरे च बंद करके रख दो, कुछ नहीं होएगा, बहुत साल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन। लेकिन बेटा जो ही तुम वो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन च एक प्लैटीनम की वायर सुट दोगे ना, जस्ट वायर, ओके, वो की होएगा, बहुत वाइगरस रिएक्शन होएगी। ठीक है, बहुत वाइगरस रिएक्शन होएगी तो वाटर बनेगा। ठीक है, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होएगी, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, सिर्फ किदे नाल, एक कैटलिस्ट के पैण नाल। ठीक है, ओके, तो यह बेटा की करता है 10⁻10 तक रिएक्शन को की कर देंगे, 10⁻10 तक की स्पीड को की कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गई बेटा एक्टिविटी। हुण सिलेक्टिविटी की गल कर रहे थे फोन, सिलेक्टिविटी की गल कर रहे थे बेटा। सिलेक्टिविटी की होंगी है एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरैक्ट अ रिएक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने ली। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने ली, ओके, या रिएक्शन को डायरैक्ट करने भी की केड़ा प्रोडक्ट बने। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपन केड़ा मिले, वो की है बेटा सिलेक्टिविटी है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए अपन। ठीक है जी, वो वाली एबिलिटी में आप कहेंगे सिलेक्टिविटी कहेंगे। हुण बेटा की है कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर हाइड्रोजन है। हुण बेटा की है रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि अपने को कैटलिस्ट अलग अलग ने। कैटलिस्ट जो आप निकल पावांगे अपन की मिलेगा, मीथेन मिलेगा। जो आप कॉपर तो जिंक ऑक्साइड पावांगे उदों की मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। तो जो कॉपर पावांगे उदों की मिलेगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ओके, रिएक्टेंट सेम ने, जस्ट कैटलिस्ट दे डिफरेंट होने नाल अपना प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये कैटलिस्ट दी की है सिलेक्टिविटी है। कैटलिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, कैटलिस्ट ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की बनेगा। ओके, हुण बेटा अपने को की है एसिटाइलिन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पाया, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। अगर आप प्लैटिनम पावांगे तो अपन इथेन मिलेगा। लेकिन बेटा आप लिंडलर कैटलिस्ट पावांगे, अगर लिंडलर कैटलिस्ट पावांगे तो अपन की मिलेगा इथीन मिलेगा। ये की बेटा सिलेक्टिविटी की दी है, ये सिलेक्टिविटी की दी है कैटलिस्ट दी है। लिंडलर कैटलिस्ट की करता है बेटा, ये की करता है, ये इथेन देगा। लेकिन प्लैटिनम पावांगे तो की मिलेगा, सॉरी इथीन देगा। लिंडलर कैटलिस्ट अपन इथीन देगा, लेकिन प्लैटिनम पावांगे तो की मिलेगा अपन इथेन मिलेगा। ठीक है, किदी है बेटा सिलेक्टिविटी की है, कैटलिस्ट दी है। ओके, इस करके जोड़े अपने कैटलिस्ट की होंगे ने हाईली स्पैसीफिक होंगे ने, हाईली स्पैसीफिक होंगे। ओके, ये बेटा अपना कैटलिस्ट कंप्लीट हो गया। आप नैक्सट लैक्चर के करांगे एंजाइम कैटलिसिस। ठीक है, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अपनी बायोलॉजिकल बायोकैमिकल प्रोसैसिस जो अपने अंदर हो रही ने, वो कैटलिस्ट वो वाली रिएक्शनस कैटलाइज किया जाता है एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, ओके, इनू आप पढ़ांगे नैक्सट लैक्चर। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर।